What really is energy in the context of Vastu? Everything is energy, and we actually regularly experience it. We are made up of 5 elements, and the space that we live in is also made up of 5 elements. What does each direction symbolize, and how does it affect the function of that space? What 80% of the people know is that Vastu is only about sunlit paths. It's only about the 5 elements. But in reality, when we get into the depths of Vastu, there are actually 45 energy fields which affects us directly. Very unfortunate, some of my friends have got into depressions and depressive medication treatments, and वो 10 साल पहले या 5 साल पहले एकदम normal या full vibrant life जीते थे. Vastu is not about your financial growth only. It is about aligning your energy in all contexts of life. Namaste and welcome back to the Rise Podcast, the show where we decode complexities of real estate for the everyday consumer. I am your host Prateek, and today we are addressing a subject that's often wrapped with a lot of mystery, emotion and a lot of confusion: Vastu. Whether you're looking for buying a new home or already living in one, or just curious about why your architect suddenly insists not to make a toilet in the northeast, you're going to love today's episode. We are joined with a very insightful Suchi Goel, a certified interior decorator and Mahavastu expert, known for blending Asian energy sciences into the real-world practicality. She's here to help us clear the clutter around Vastu and uncover how it truly impacts on what we feel, live and grow in our everyday homes. Let's get started. Suchi, the first question for you. What really is energy in the context of Vastu? How do we experience it in our daily lives? Everything is energy, and we actually regularly experience it. We are made up of 5 elements, and the space that we live in is also made up of 5 elements. And the moment we are in sync, in harmony with it, we experience a lot of enthusiasm that ये करना है, ये कर ही लेंगे आज. ये जो है ना, ये तभी होता है जब हम एक सिंक में होते हैं अपने स्पेस के. Otherwise, we are very lethargic, सिर्फ planning पे planning बनती है, and eventually it does not get executed. So this is how we actually see energy, the rise and the fall of energy in context to Vastu, in a space that is aligned with Vastu. Interesting. Can we think of Vastu as a language of natural forces instead of do's and don'ts? Yes, Vastu is completely aligned with natural forces. And there's nothing like do's and don'ts. ये जो पूरा do's and don'ts है, this is actually drafted for layman, common man, क्योंकि हर किसी को है ना उसके डेप्थ में, उसकी साइंस में समझने को they don't have the time and effort. So बहुत easily ये बता दिया गया है कि ऐसे कर लो, ऐसे मत करो. For instance, नॉर्थ ईस्ट, हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लेते हैं, तो वहाँ पर हर किसी को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए. जी. पर क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज़ वाटर एलिमेंट, इट इज़ रूल्ड बाय वाटर एलिमेंट, तो वहाँ पर एक फ्लो होना चाहिए. और दूसरा, मंदिर, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली वास्तु पुरुष का सिर होता है. व्हेन वी सी द वास्तु पुरुष मंडला, वहाँ उसका सिर होता है और उनका हेड है, तो इट शुड बी क्लटर फ्री, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. और घरों में मंदिर ही एक वो पोजिशन है विच इज़ वेरी क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज और बहुत प्रेम से रखते हैं. तो वहाँ पे आइडियली बता दिया गया है कि मंदिर होना चाहिए. बट जब हम अदर कल्चर्स को देखते हैं, मे बी बुद्धिज़्म, तो वो मंदिर नहीं फॉलो करते हैं, बट दे कीप नॉर्थ ईस्ट फॉर मेडिटेशंस. इंटरेस्टिंग. सो डूज एंड डोंट्स नहीं है. द ओनली बॉटम लाइन इज कि वो वास्तु पुरुष का सिर है, एंड दैट एरिया हैज़ टू बी इन अ सर्टेन फ्लो. यू कैन नॉट क्लॉग इट. सो या, इट इज़ साइंस ऑफ नेचुरल फोर्सेस. Very true. Is Vastu based on magnetic fields or sunlight paths? What is the science behind directions? This is a really interesting question, Prateek. Till date, what 80% of the people know is that Vastu is only about sunlit paths. It's only about the 5 elements. But in reality, when we get into the depths of Vastu, there are actually 45 energy fields Okay. which affects us directly in all contexts of life, be it health, wealth or relationships. And the science behind direction is also actually derived from that.
if we talk about, for example, we talk about the north direction. So we know that north direction is water element. We all know this. But how big is north? And in Mahavastu, directions are categorized into 16 zones, each having their fixed attribute. And those attributes are in reality derived from those energy fields. North has 3 energy fields. So the attribute of north, money and opportunities, is not only about water element, it is about those energy fields which are ruling the north direction. Interesting. Can you elaborate on the 46 energy? 45 energy 45 energy fields. If we talk about north, तो north में जो money and opportunity का हमारा zone होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एक energy field है भल्लाट की, which is actually कुबेर जी की जो स्थान दी गई है वो वहाँ होता है. तो हम उसको बोलते हैं that gives us money and opportunities. There is another energy field in north which is सोम, जो कि सोम रस, the समथिंग जिसके लिए कभी कोई चीज़ आप मरते नहीं हो, अमृत, दैट सोम रस. तो ये जो चीज़ें होती है इसीलिए नॉर्थ इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो हमको पैसे देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है, यू नो. तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द वाटर एलिमेंट, इट इज़ अबाउट दोज एनर्जी फील्ड्स. बुधर, दैट इज़ द एनर्जी फील्ड जो कि मैनिफेस्टेशंस को कराता है. Okay. तो दैट इज़ वाई वी से कि नॉर्थ ठीक रखो तो आपके पास पैसे आएंगे, एवरीथिंग विल बी गुड एट योर हाउस, बिकॉज इन रियलिटी यू आर बैलेंसिंग दीज एनर्जी फील्ड्स. Fantastic. What does Mahavastu do differently from the standard or conventional Vastu practices? And what makes it Mahavastu so adaptable to today's urban homes and urban lifestyles? आज का जो यूथ है ना, उसको बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ समझ नहीं आता है. जी. घर छोटे होते हैं, टाइम कम है, तो पीपल वांट कि इतना तोड़फोड़ होगा वास्तु में, बेटर मत करो. काफ़ी बार स्कोप भी नहीं होता तोड़फोड़. करेक्ट. महावास्तु इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, वो तोड़फोड़ कराता ही नहीं है. देयर इज जस्ट नो डेमोलिशंस इन महावास्तु, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप 6 स्टेप के प्रोसेस से लेयर बाय लेयर आपको सोल्यूशन देता है विथ वेरी टेक्निक्स बट विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस. एंड वो टेक्निक्स इतने सिंप्लीफाइड होते हैं कि हर कोई अडेप्ट कर सकता है, उसको लगा सकता है अपने घर पे. इनफैक्ट वो उसके घर के आर्टिफैक्ट से भी हम क्रिएट कर देते हैं. इट इज़ दैट सिंप्लीफाइड बट दैट कैलकुलेटिव. Does it work like the standard Vastus then? इट वर्क्स इवन बेटर, वे बेटर. स्टैंडर्ड वास्तु में है ना, जो मेरे क्लाइंट्स, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो बोलते हैं कि हमको एक रिज़ल्ट आ रहा होगा. महावास्तु में हम डिफ़ाइन करते हैं कि 21 to 45 डेज़ में आपको रिज़ल्ट आएगा. इट इज़ सो, yes, it is so calculative, so precise, unlike the conventional Vastu. That is why it is very different, and henceforth it is so adaptable to the youth, to the urban homes now. Fantastic. Why do some homes instantly feel peaceful while others feel energetically heavy or groggy, even if they've done the same practices, same philosophies implemented? As we just spoke about कि जो घर जो energetically बहुत अच्छे फील होते हैं, उसमें actually 5 elements, and now since we already spoke about magnetic fields, basically वो सारे balance होते हैं. और जो नहीं होते हैं वहाँ पर हम बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं. जैसे लोग है ना साउथ ईस्ट में किचन बनाते हैं, राइट, बट दे मेक अ ब्लैक स्लैब ओवर देयर. सो कन्वेंशनली उनको लगता है कि उन्होंने सही वास्तु किया है, बट उन्होंने फायर के जोन पे वाटर एलिमेंट को डाल दिया है. And black, green and grey are the most common colors for kitchen slabs. Yeah. Green is even less, very less. Generally it is black. Most cases black, grey. आजकल रेड्स बहुत हम देखते हैं, वाइट्स हम बहुत देखते हैं. सो एक एलिमेंट का बैलेंस करके करते हो तो आप एनर्जेटिकली बहुत हाई फील करते हो. नहीं तो फिर क्योंकि आपको समझना होगा दैट यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल लॉज, एंड इफ़ यू आर इन अलाइनमेंट यू आर राइजिंग अबंडेंटली, और एल्स ड्राउजीनेस, ड्रेन्ड आउट, ये तो होना ही है. So the implementations are customized. Yes. It is custom. Hence, the do's and don'ts will not always work. Correct.
Can homes retain emotional energy like stress, conflict और illness over time? कहते हैं ना कि दीवालों के भी कान होते हैं, तो क्या ये घर मेरे इमोशंस को भी कंटेन करके फ्यूचर में उसको मैग्नीफाई करता है? ये ना आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे किसी की रीसेंट शादी हुई है एंड मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते हैं, और द डॉटर इन लॉ आफ्टर हैविंग स्पेंड 3 months और सो इन दैट हाउस, वो कहती है कि है ना, मैं इस घर पे शादी के बाद बहुत बीमार पड़ने लग गई, आई हैव बीन फॉलिंग सिक सिंस द टाइम आई हैव गॉट वेडेड। या फिर देयर आर कंप्लेंट्स कि डॉटर इन लॉ बहुत गुस्सा है, या यू नो द एंग्जाइटी। Over here, I'm trying to stress onto the point that a new member has come to the existing house, and it picks up the vibes of the house because जब हम उस घर की हिस्ट्री को देखें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर माहौल ही चिड़चिड़पन का होता है, या वहाँ पर कोई और सिमिलर सिकनेस हो चुका है। सो एक्चुअली वो एनर्जीज रिटेन रहती है, इसीलिए एनी न्यू मेंबर, एंड वो बहुत फ्रीक्वेंटली हमको इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि शादी से पहले मेरे को ऐसा नहीं होता था कभी, अब हो रहा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हो क्या रहा है। I have many friends who've often complained कि pre-marriage and post-marriage मेरे energies में, मेरे outlook towards life में काफ़ी बदलाव आया। Yes. Very unfortunate, some of my friends have got into depressions and depressive medication treatment. Yeah. And वो 10 साल पहले या 5 साल पहले एकदम नॉर्मल या फुल वाइब्रेंट लाइफ जीते थे। Correct. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, डेली लाइव्स, किन लोगों के साथ आप बैठते हो तो आप बहुत ड्रेन्ड महसूस करते हो, आप उनसे दूर जाना चाहते हो, और कुछ लोग हैं जिसकी तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, जो आपको हमेशा और लाइवलियर करके वापस भेजते हैं। सो दिस इज ये सारी है। Yes, you, as I said, you yourself are a magnetic field, so you attract energies. But here, when we talk in the context whether houses actually retain that energy, it does. What does each direction symbolize, and how does it affect the function of that space? Each direction symbolizes the elements primarily. जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करें, that is water, east is air, south east is fire, southwest is earth, and likewise. So each direction actually symbolizes elements, and हम जब उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी को अडेप्ट करते हैं, जैसे फायर है तो फायर जोन्स पे अगर हम बर्नर किचन बना रहे हैं, तो हम वी आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द लॉ, वी आर एक्चुअली इन अलाइनमेंट विद द लॉ, और हमको बहुत अच्छा फील होता है। दो फूड जो प्रिपेयर होता है वो हमको ग्रोथ देता है, एक बैलेंस रहता है। साउथ वेस्ट इज़ अर्थ एलिमेंट, अर्थ गिव स्टेबिलिटी, एक स्किल सेट को डेवलप करता है अर्थ एनर्जीज, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वहाँ पर। तो जब हम वहाँ पे बेडरूम बनाते हैं, व्हेन वी यूज़ दैट स्पेस इन अ फंक्शन टू मेक अ रूम ओवर देयर, देन यू आर मोर ग्राउंडेड, यू आर मोर स्टेबल। पर अगर मान लो साउथ वेस्ट पे आपने फायर बना दिया, किचन आपका साउथ वेस्ट पे आ गया, तो फायर तो अर्थ को जला देगा, तो हमेशा झगड़े, आप कुछ करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझसे हो नहीं रहा है, क्योंकि आपका स्किल सेट बर्न हो जाता है। आर्ग्यूमेंट होते हैं क्योंकि आप ग्राउंडेड नहीं हो, आप स्टेबल नहीं हो, वो बर्न कर रहा है, एंड यू डोंट नो द रीज़न टू इट। So when you are in alignment with the functionality of the element of that space, you actually are at peace with many things. Very well. What happens when we are living in a directionally misaligned home? It is just similar that when we are living in a directionally misaligned home, then your life is at mess. बट हम किसको डायरेक्शनली मिसअलाइन बोलेंगे? सिर्फ एंट्री को, क्या सारे स्पेसेस के फैक्टर्स? सारे स्पेसेस के फैक्टर्स को। जैसे मैं ना वेस्ट साउथ वेस्ट का एक एग्जांपल लेती हूँ, दैट इज़ प्राइमरीली द जोन फॉर एजुकेशन एंड सेविंग्स। अगर आप वहाँ पर बच्चों की स्टडी टेबल बना लेते हो, तो आप देखोगे कि जो बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ रहा है वो एक्चुअली उस नॉलेज को ग्रास्प कर रहा है, उसके सडनली इंटरेस्ट स्टडीज़ में बढ़ता है, उसको मार्क्स बढ़ते हैं, यू नो ही इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग सडनली, अगर आप देखते हो। और वहीं अगर उसको ईस्ट पे बिठा दो, ईस्ट साउथ ईस्ट पे बिठा दो, आप देखोगे कि उसका पूरा इंटरेस्ट ही सोशल मीडिया पे आ गया, ही इज़ ऑलवेज ऑन द फोन, ऑलवेज मूविंग अराउंड। तो अगर आप एक डायरेक्शन के फंक्शन को अगर उसको अलाइन कर देते हो उस स्पेसिफाइड पर्पस एक्टिविटी के साथ, तो आप देखते हो कि आप बहुत हार्मनी के साथ अपनी लाइफ जी रहे हो। मेक सेंस, ट्रू।
तो हर एक जोन का ना एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स, ऑन मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड बहुत सिंप्लीफाइड वे से उसको जोन्स में कैटेगराइज कर दिया है. सो यू मस्ट यूज इट इनटू फंक्शन ऑफ दैट एक्टिविटी. Fantastic. So, in a nutshell, often we get clients who say ki direction of the main gate is vital for me. Of course, that is important. However, they fail to check the rest of the spaces. So, is it good to conclude that only the entry is not the biggest of factor? It may be important, but not the only factor. Yes, absolutely. It is important. Definitely entrance is important, because an entrance is a point where your world, your inner world, is actually connected to the outer world. So how people perceive you or how will your growth be is one of the key factors, is the entrance. But if the entrance is good and everything else is at mess, you will really grow only maybe in one context of life. But no, you will not. So it is important to understand every detail, every layer. Sweet. Are remedies without structural changes, like you mentioned, colors, mirrors, elements, really effective? And ये जो claim आप बोल रहे हो कि 25 दिन में 45 दिन में आपको देखने मिलेगा, can you share some real life examples where it has been really successful? Yes, I would say कि without even using these objects, I would say just relocating few things, also you get instant results. So one of my clients, he had fatty liver, and उनका इन्वर्टर एक गलत जगह पे था when he came to me, और हमने सिर्फ वो इन्वर्टर को रिलोकेट किया. घर पे ना हर रंग के पेंट थे. एंट्रेंस का लिविंग एरिया वॉज पिंक, वन रूम वॉज ब्लू, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू पेंट दीज कलर्स, बट वो एलिमेंट्स के साथ अलाइन नहीं थे. तो जब हमने सिर्फ इनको ठीक किया, वी एक्चुअली रीपेंटेड द एंटायर हाउस इन ऑफ वाइट कलर, इन्वर्टर को रिलोकेट किया, किचन में ग्रीन स्टोन लगाया, जस्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, और लिविंग एरिया में उनके ना मतलब किसी ने उनको बोला कि हम मिरर लगाने से उनके जो इम्बैलेंसेस थे वो ठीक हो जाएंगे. सो वी एक्चुअली रिमूव्ड दोज मिरर्स, और आई थिंक ही वाज शेड्यूल्ड फॉर सम ट्रीटमेंट इन फोर्टिस, एंड 20 days में दे हैड द रिवर्स टेस्ट, मतलब एब्सोल्यूट, एंड दे नेवर विजिटेड. And till date, we are very good friends, and he actually never believed into Vastu. So, magical hai. This sounds too good to be true. Yeah, it is. It is. Fantastic. Is Northeast often called the sacred in Vastu? What if we can't keep it open? You don't have to keep it open. This is a myth. Northeast को open रखो. क्यों रखना है? Logic समझो. Northeast is the head of वास्तु पुरुष, तो उसको ओपन नहीं रखना है, उसको डीक्लटर्ड रखना है, उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना है, उसको लाइट रखना है. बट अब लोगों को लगता है खुला रहेगा तो ही लाइट होगा, बट वो ओपन जगह में फिर प्लांट्स भर देते हैं, है ना, फर्नीचर आ जाते हैं. एक एक करके आते हैं. सो वो जो प्लांट रख रहे हो नॉर्थ ईस्ट में, उसकी मिट्टी इतनी हैवी होती है, सो इवेंचुअली यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट पर्पस. अगर दरवाजा है या पैसेज है तो वो बाय डिफॉल्ट खुला ही रहेगा. करेक्ट. सो उसको ओपन रखना इज नॉट द लॉजिक, उसको ऑर्गेनाइज to keep it clean and decluttered. Yeah. Anyway, can south-facing homes be beneficial as well? This is really important question. We have residential projects ongoing, and I can vouch for it कि majority people only claim कि मुझे north facing घर चाहिए. तो क्या south facing खराब है कि south facing beneficial नहीं हो सकता? What is your take on that? I will say that लोग है ना एक भ्रम में जीते हैं, नॉर्थ एंड ईस्ट. मेरे पे बहुत क्लाइंट्स आते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट, और मेरा उनसे पहला सवाल होता है कि ये ना आपके फैमिली में जिनका भी ये है, मुझे ये डेटा दिखा दो कि क्या वो सक्सेसफुल है, और जो साउथ फेसिंग है क्या वो सक्सेसफुल नहीं है. सो देन दे आर लाइक ऐसा भी होता है, बट ऐसा ही होता है. साउथ इज़ एक्चुअली रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स, और जिनका साउथ फेसिंग घर होता है वो डेफिनेट टर्म्स पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, उस सेगमेंट में ना दे गो इनटू दोज सेगमेंट्स, एंड बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं. वो जो सोचते हैं उसको कर दिखाते हैं. इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेरी गुड एंट्रेंसेस. ऑब्वियसली साउथ बहुत बड़ा है, एंड लाइक जैसे नॉर्थ बहुत बड़ा है, तो नॉर्थ के सारे एंट्रेंसेस अच्छे नहीं होते हैं,
There are particular entrances in north which gives you abundance. Likewise, south के particular entrances होते हैं which gives you unparalleled abundance. Amazing. In compact flats, is the concept of Brahmastan, the center, still relevant? Yes. घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, सेंटर तो है ही. अब एक छोटा बच्चा हो या अडल्ट हो, the navel is still there and is equally important. So that Brahmastan is actually the navel of Vastupurush. So it is very, very important and relevant in maybe 100 square foot area or 1,000, 10,000 or 10 lakh. Brahmastan is one of the primary things and very important. Even in a flat? Yeah. In a flat, मतलब एक बिल्कुल छोटा मे बी 1 BHK रूम, उसमें भी बहुत उतना ही रेलिवेंट है. एवरीवेयर Center is center. सेंटर इज सेंटर. एज आई सेड कि भले ही वो 1 महीने का बच्चा हो या 90 years का ओल्ड, द नेवल इज द प्राइमरी पोजिशन and it is the most vital, the most relevant position in the human body. Likewise in Vastu, it is most important. What is a cut corner or a missing zone in Vastu? How does it matter? A cut corner and a missing zone in Vastu, you can understand, जैसे एक रेक्टेंगुलर घर के एक सर्टेन सेक्शन में ना एक डेंट हो गया. देयर आर सर्टेन पोर्शंस जिसको हम देखते हैं कि वो थोड़ा अंदर है या वो जोन कट हो गया है किसी भी प्लॉट या घर पे, तो उसको हम कट या मिसिंग जोन बोलते हैं, क्योंकि हम सेंटर से उस एरिया को चेक करते हैं तो वो एरिया कंपैरेटिवली कम होता है टू द अदर एरियाज ऑफ द हाउस. सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कट पोर्शन. और वो इसीलिए इतना रेलिवेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी इसीलिए है क्योंकि जो चीज़ें आपके पास कम होती है ना, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग करते हो. तो अगर आपका कोई भी जोन कट है, मे बी इम्यूनिटी का जोन कट है, आप देखोगे कि हर वक्त आपको फील रहता है कि मैं किसी डॉक्टर के पास चली जाऊँ, मैं कुछ ये आयुर्वेदिक ले लूँ. मतलब दैट फोकस इज ऑलवेज टू बिल्ड इम्यूनिटी इन वेरिड वेज, क्योंकि वो वीक है. ऑब्वियसली उसके इम्पैक्ट है, बट आपका लॉन्गिंगनेस रहता है इवन इफ़ यू फाइन. तो जो कट होता है या जो चीज़ें कम होती है हमारे पास, इवन इन जनरल लाइफ, जो चीज़ें हमारे पास कम होती है हमको लगता है कि हमको वो ही चाहिए, और जो चीज़ें हैं हमारे पास उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. तो कट जोन्स का भी सिमिलर इम्पैक्ट ही होता है हमारे माइंड में. So does that mean a plot or a flat, any kind of a living, let's say, has to be square essentially? No, it is obviously a good one that अगर स्क्वायर मिल जाए तो, बट ये होता नहीं है आज के टाइम पे. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. और अगर मान लो आपने स्क्वायर ले भी लिया तो वो डक्ट बनेगा, कुछ ना कुछ तो आप क्रिएट ही करोगे ना, तो वो डेंट तो आएगा ही कहीं ना कहीं. इट हैज़ टू बी देयर. तो वो जो कट पोर्शन है उसके इम्बैलेंसेस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बट वो बहुत ईजिली ट्रीटेबल भी होते हैं. बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या कट पोर्शंस को इग्नोर कर दे, मतलब इट्स ओके वो कट ही है तो वो चलेगा, नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि क्लाइंट हमेशा कंप्लेन ही वो लेकर आता है हमारे पास. और जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एरिया एग्जॉस्टेड है, वो कट है, क्योंकि उसकी लॉन्गिंगनेस, उसको जो सोल्यूशन चाहिए वो उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और वो उसके बियॉन्ड सोच नहीं पा रहा है. उसकी डिज़ायर ही ये रहती है कि बस ये आप ठीक कर दो. तो ये लॉन्गिंगनेस को बहुत ज़्यादा रहता है. एंड half the times it's not much relevant, but of course it's relevant for the client. Let's move to the next section. Yeah. How does color therapy help with Vastu imbalances, and what is the logic? Okay, colors are very important and important in every layer. अगर हम प्राइमरी लेयर को समझे तो हर एक कलर एक एलिमेंट को डिफाइन करता है. जैसे ब्लू कलर डिफाइंस वाटर एलिमेंट, ग्रीन और कॉफ़ी डिफाइंस योर एयर एलिमेंट, फायर इज़ रेड और पिंक, likewise earth is yellow, beige, and your space element is grey और white. तो जब आपके घर पे कोई भी imbalances होता है कहीं पर भी, तो वो कलर्स उन एलिमेंट्स, इवेंचुअली एलिमेंट्स का इम्बैलेंस है ना कहीं, तो आप उसको कलर से बैलेंस कर देते हो. बहुत सिंप्लीफाइड टेक्निक. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल में बताया कि उनका किचन है साउथ ईस्ट में और ब्लैक स्लैब है, तो उनको इश्यूज जनरली आएंगे एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ पंगा चलता रहेगा और उनको रीज़न नहीं समझ आएगा. दे विल बी लाइक कि हम तो खिचड़ी खा रहे हैं,
बट वो वहाँ दिक्कत नहीं है, एलिमेंट का इम्बैलेंस है। तो अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि स्लैब तोड़ दो, वी विल नॉट से दैट। हम इंस्टेड क्या करेंगे, ब्लैक स्लैब इज़ वाटर एलिमेंट एंड फायर, दैट इज़ द बर्नर जो है आपका, दैट इज़ फायर, और इन दोनों के बीच में आता है एयर एलिमेंट। तो हम उनको बोलेंगे कि आप ग्रीन मैट या ग्रीन बरोडा स्टोन बीच में लगा लो, Okay. thereby converting water to air and air to fire and resolving the issue. So colors बहुत magically काम करते हैं क्योंकि एक एक element is determined by varied colors. And I've experienced it myself as well कि color से emotions भी बहुत ज़्यादा fluctuate करती हैं. Days when I'm wearing a certain color, I feel confident or less confident. Yeah, So it that does is make an the astro part of it. And वास्तु में भी astro वास्तु होता है. So yes, as I said कि colors हर layer पे important है. So अभी मैंने आपको एलिमेंट के लेयर पे समझाया कलर्स, बट इन रियलिटी एस्ट्रो वाइज भी जो हमारे घर के मैग्नेटिक फील्ड्स है उनके भी कलर्स होते हैं, और अगर आप वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो तो आपको एक सर्टेन एक्सपीरियंस होता है, और नहीं करते हो जैसे नॉर्थ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने इंटायर नॉर्थ पे खाली ब्लू 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 भर दिया है, तो वहाँ पे बहुत सारे बैलेंसेस हम करते हैं, ये तो एक्सेस वाटर हो जाता है. सो lot of detailing with colors, but it is very, very important. Is using too much of white or grey dulling the home's energy? Yes, yes. As I mentioned, that white and grey are basically representing space element. Okay. And space is like infinite. तो जब आप घर पे ना बहुत ज़्यादा, and I'm not talking about off-white. Okay. Here we are taking into consideration pure white and grey, like tones of grey. तो वो क्या होता है ना, जैसे स्पेस है ना एक इनफाइनाइट है, तो हर समय लगता है कि कुछ अधूरापन है, कुछ पाना है, कुछ अधूरापन है. दैट एंथू, दैट एक्साइटमेंट इन लाइफ ऑलवेज गोज फॉर अ टॉस. मतलब आप ऐसे मान लो कि वो घर है ना बड़ा डिप्रेसिव सा होता है, बिकॉज दैट वाइब्रेशन यू आर ओनली एक्टिवेटिंग दैट हाउस विथ अ सर्टेन एलिमेंट. उसमें वाटर मिसिंग है, एयर मिसिंग है, फायर मिसिंग है, सब मिसिंग हो जाता है. खाली एक स्पेस, हमेशा लगता है कि क्या लाइफ में करना है, क्या ऐसा होगा. तो ये थॉट्स है ना बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं उन घरों में. तो इसीलिए हम ग्रे, सम सेक्शंस आर फाइन, बट इंटायर हाउस को वी डेफिनेटली डोंट प्रपोज दैट. Very true. What's the Vastu logic behind mirror placements? Can they amplify or redirect energy? यस, मिरर्स जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एंड स्पेस एलिमेंट्स को. तो अगर आपके घर पे या किसी भी स्पेस पे वाटर और स्पेस के जो हमारे जोन्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के जो हमारे जोन्स है, यहाँ पर अगर कट पोर्शंस है और अगर आप मिरर लगाओ, जस्ट अ प्लेन बिग मिरर ओवर देयर, 3x2 इज द मिनिमल साइज आई वुड से. अगर आप उतना मिरर लगाओगे ना, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, यू विल सडनली फील कि आपका वो एरिया बैलेंस है. उसके Cut portions feel extended. एक्सटेंड, बिकॉज मिरर्स एक्सटेंड. बट यही मिरर अगर आपने लगा दिया मे बी साउथ ईस्ट, वो फायर है, और मिरर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस एंड वाटर. मतलब आप ये समझो ना, पानी में, पॉन्ड में ही तो अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, पानी में तो दिखता है, तो मिरर में भी तो रिफ्लेक्शन ही है तो वो पानी ही इन एलिमेंट्स. तो जब आपने उसको फायर जोन्स पे पानी डाल दिए तो उसकी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे. तो मिरर्स को बहुत केयरफुली, मतलब ये हर एक ऑब्जेक्ट है ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बट जितना ये ऊपर लेके जाता है उतना ही इसमें कैपेसिटी होती है गलत तरीके से अगर यूज़ हो गया उतना ही नीचे लाने को. So, as long as we use it well in the right zone, it will be positive. यस, And कोई भी गलत जोन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिए, तो अगर साउथ कट आउट है एंड उसमें लेट्स से मिरर ट्रीटमेंट किया जाए, दैट्स नॉट अ गुड great ऑप्शन. solution. या नॉट एट ऑल अग्रीड. इनफैक्ट मतलब मैंने बहुत घरों में देखा है द कन्वेंशनल मेथड्स में, अगर एंट्रेंस गलत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एंट्रेंस किस जोन पे है, कहाँ पर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, वो आते हैं और है ना वहाँ पर उनके मेन एंट्रेंस के बाहर मे बी देयर सम पिलर और साइड वॉल पे दे प्लेस अ मिरर. Okay. और जब मैं पूछती हूँ कि ये मिरर क्यों लगाया है, देन दे आर लाइक कि उन्होंने समझाया कि ये मिरर है ना उनकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करेगा, वो नेगेटिव एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर देगा, ऑल दीज थिंग्स. मैंने बोला बट दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन फॉर मिरर, आप नहीं लगा सकते यहाँ पे, ये यहाँ पे पानी मतलब इट इज़ नॉट सुटेबल.
बट एंड आई आस्क्ड देम द सेकंड क्वेश्चन इज कि लगाने के बाद फ़र्क पड़ा? अगर आप कोई घर पे ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो जी तो एक इम्पैक्ट आना चाहिए ना। महावास्तु उतना प्रिसाइज है कि अगर ये लगा है तो इसका इम्पैक्ट ये होना चाहिए। तो कहीं पे भी मिरर लगा देना विद द सेंस कि वो रीडायरेक्ट कर रहा है उस एनर्जी को, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एलिमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उसकी यूजिबिलिटी, एंड देन उसको प्लेस करो, मैजिकल रिजल्ट्स। amazing. What important is daylight versus artificial light as far as vastu goes? नेचुरल इज ऑलवेज नेचुरल, आर्टिफिशियल इज ऑलवेज आर्टिफिशियल। बट आजकल तो सनलाइट भी आर्टिफिशियल बनने लग गए। हाँ, तो आप अच्छा इमेजिन करो, आपका एक घर है, ईस्ट में एक बालकनी है, और आप सुबह उठ रहे हो 5 बजे, द सन इज़ राइजिंग, और आपने बालकनी का खोला, विंडो खोला, एंड यू स्टैंडिंग देयर एंड देयर इज़ अ कूल ब्रीज, बर्ड्स चर्पिंग कर रहे हैं एंड द सन इज़ राइजिंग। सडनली ऐसा मोटिवेशन आता है कि आज तो योगा कर लेते हैं, वॉक करके आ जाते हैं, थोड़ा सा एक डायरी पेन लिख कर यू स्टार्ट प्लानिंग योर डे। एक है ना पुश, इनर पुश हो रहा है, एज इफ द सोल इज कनेक्टिंग टू समथिंग। वर्सेस इमेजिन करो कि आपका एक घर है, वहाँ पे कोई बालकनीज नहीं है, एक विंडो है जिसपे आपने कर्टन लगा रखा है, एसी ऑन है, बड़ा कूल सा घर है, रूम है, एंड देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइट, नेचुरल येलो वाइट, भर के लाइट है ना। उठते हो 5 बजे सो जाओ, जस्ट नॉट मोटिवेटेड, वो फील ही नहीं आता है अंदर से। तो जो नेचुरल होता है ना, चाहे वो आर्टिफिशियली कितना ही क्रिएट हो जाओ, Natural. बिकॉज अंदर से कनेक्शन होता है जो 100%. से नहीं होता। मैं दिल्ली रहा था काफ़ी टाइम, सो दिल्ली में एज यूजुअल पीजीज एंड Yeah. रिलेटिव्स के घर है, वो इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि नेचुरल लाइट घुसती नहीं है। सो मैं आई स्पेंट ईयर्स लिविंग अंडर द ट्यूबलाइट 24 hours ओके, and वो period I still remember, I think would be the most depressing of periods. या Coming back to Siliguri, it was such a game changer कि I'm an early riser, तो वो morning sun के साथ जो playfulness है, करेक्ट, and you feel it in every cell of your body. यस So artificial will be artificial, and sun energy is. ऑफ द फैक्ट कि कितनी भी रोशनी हो। In fact, to add to this, very interestingly, in the field of architecture, we have something called a light illumination report. So Okay. उस पे आप पूरे sunlight की सुबह day from the sunrise to sunset for throughout the year, like summer, spring and winter months के लिए भी a report can be generated कि आपके फ्लैट में कितनी लाइट every hourly कितनी लाइट जाएगी. ओके, So for our recent projects, we got these reports done. And to my shock, rather, all the visitors, whoever we showed this report, they don't understand it. They don't understand the concept कि ये क्यों ही किया. And अगर मैं किसी से पूछूं कि सर ऐसा रिपोर्ट आपने पहले देखा है क्या, तो I was shocked to know कि not a single project around the entire around the city ever showed them or spoke to them about the subject of करेक्ट, कि सर आप ये खरीद रहे हो, करोड़ों की चीज़ें हैं, एंड इसमें लाइट पूरे दिन भर, पूरे साल भर कितनी आएगी, एंड वो आपके डेलीहुड पे कितना इम्पैक्ट हर चीज़ को ग्रो कराती है। या वही हम जो पहले बात कर रहे थे ना रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स, दिस इज़ वाई पीपल को दे डोंट अंडरस्टैंड, नॉट दो आर दे इंटरेस्टेड टू गेट इन टू द डेप्थ। बट अगर रियल डेप्थ में जाओ तो पता चलता है कि नेचुरल आपको कितने लेयर्स पे एक साथ कनेक्ट करता है, एंड ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो जो रिपोर्ट आप बना रहे हो, आई वुड इंसिस्ट कि इफ़ पीपल डू नॉट नो अबाउट इट, दे शुड नो अबाउट इट। नाउ द यूथ इज़ चेंजिंग, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, बट ना पहले का ऐसा सिस्टम चल रहा है दैट एफर्ट अगर कोई लेना भी चाह रहा है वो नॉट अप्रिशिएटेड, बट There's still a gap. We'll get there. So do building materials like wood or metal affect the energy patterns? How do we choose between them? ये ना हम बहुत बार यूज़ करते हैं फॉर आवर स्टेयरकेसेस प्राइमरीली, क्योंकि घरों पे एक एक पोर्शन को सेग्रीगेट कर पाना इज चैलेंजिंग। बट जब हम मेटल्स या वुड या कोई भी एलिमेंट को यूज़ करते हैं, मटेरियल को यूज़ करते हैं, स्टेयरकेस के लिए हम डेफिनेटली चूज़ करते हैं। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट का स्टेयरकेस है, वहाँ पे आपने नॉर्थ वेस्ट क्रिएट किया स्टेयरकेस, तो वुड अवॉइड करना चाहिए।
वो वहाँ पर अननोइंगली एयर एलिमेंट को क्रिएट कर देगा विच इज़ नॉट नीडेड, एंड उसके अपने इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। वे रेकमेंड कि वहाँ पर आप आयरन का स्टेयरकेस यूज़ करो। वर्सेस अगर आपका ईस्ट में कोई स्टेयरकेस है तो हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि यूज़ अ वुडन स्टेयरकेस, क्योंकि जैसे हम बात करें कि हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक मटेरियल एक्चुअली एक एलिमेंट को डिफाइन करता है, और जब आप उस एलिमेंट के हिसाब से उन चीज़ों को पुट इन कर देते हो तो आप नेचुरली यूनिवर्सल लॉज के साथ अलाइनमेंट में हो। वर्सेस जब आप कुछ तो भी लगा देते हो तो हर एक एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक मटेरियल इम्पैक्ट करता है। सो कंक्लूजन इज कि एस्थेटिकली अच्छी हो ठीक है, लेकिन एनर्जी वाइज भी, जोन वाइज भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। पता है मज़े की बात ये है प्रतीक कि है ना, मैंने बहुत बहुत घर को डिज़ाइन किया है। मैंने देखा है कि जब कोई घर रैंडमली डिज़ाइंड है, कहीं तो भी कुछ तो भी है, इट लुक्स बैड, जस्ट मिसअलाइंड, लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। वर्सेस जब मैंने ऐसे डब्बे 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 से बना दिए एज पर वास्तु, ऑटोमेटिकली देयर इज स्पेस, वो ही 1000 स्क्वायर फुट के घर पे जगह ही जगह निकल जाती है। इट सीम्स मोर बैलेंस्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, क्योंकि ना आपका सबकॉन्शियस कनेक्ट करता है। वो कहीं ना कहीं जो अच्छा नहीं लग रहा है, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब आप चीज़ों को एक बैलेंस लेकर आते हो, और बैलेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस इज व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट एंड हार्मनी विद द नेचुरल लॉज। तो आप उसके हिसाब से जहाँ जो चीज़ें होनी चाहिए, लिविंग एरिया अगर ईस्ट में है, एंट्रेंस अगर आपका वहाँ है, बालकनी है या ईस्ट में, इवन इफ नॉट द एंट्रेंस मे बी द बालकनी, व्हाटएवर, तो यू विल सी द राइजिंग सन, यू ऑटोमेटिकली कनेक्टेड। तो व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट, ट्रस्ट मी, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है जहाँ आप धक्के मारते रहते हो। अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें पेपर पे भी वैसे दिखती है। आप एक घर की लेआउट डिज़ाइन 3D में या 2D फ्लो प्लेट में अगर आप देखते हैं, यू सी समथिंग विच इज़ बैलेंस्ड, यू विल ऑटोमेटिकली फील कनेक्टेड टू इट कि ये अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा लग रहा है। एंड वहीं पे बहुत ज़्यादा लाइन्स है, बहुत ज़्यादा जिगजैग जा रहे हैं, समहाउ वो अंदर से आवाज़ नहीं आती। उसको एडजस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, वो एक फ्लो में नहीं है, दैट स्पेस इज नॉट इन दैट फ्लो, बस जुगाड़ कर रहे हो, बस फिट करना है, फिट कर दो। Can clutter or poor layout affect the energy flow? Exactly, as we were just talking. दिवाली की सफाई के बाद कैसा फील होता है? अच्छा, क्योंकि जो इतने सालों का कचरा होता है ना, इतने महीनों का, वो क्लीन कर देते हो, सडनली सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हो। वो जो बिखरा हुआ होता है, जो पड़ा रहता है जहाँ पे, तो वो जो पड़ा रहता है, और फिर जब साफ सफाई करते हो तो होता क्या है, वो जो क्लॉग्ड एनर्जीज है उनको रिलीज करते हो। अरे मैं टेबल भी अगर साफ कर दूँ ना, अपनी चीज़ें को अपनी जगह पे रख दूँ, आई फील रिलीव्ड। यू लुक एट योर वार्डरोब, यू रिमूव अननेसेसरी क्लोथ्स जो बस सदियों से पड़े हैं, you feel so much brighter, lighter, as if you have achieved something great. Correct. और सडनली दिखता है कि इतने सारे कपड़े थे, है ना, तो सडनली इतने सारे कपड़े, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। दिवाली की सफाई के बाद हम जनरली देखते हैं कि एक है ना, काम का एक ग्रोथ होता है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी आने लगती है, सोचने लगते हैं लोग, अदरवाइज बड़ा डल डल सा चल रहा है, मोनोटोनस लाइफ चल रही है। सो डिक्लटर इज इम्पॉर्टेंट। Tell me this, even after a home being Vastu compliant, still feels off. ऐसा क्यों होता है? ये जो वास्तु कंप्लायंट जो ये टर्म है ना, एक होता है जो एक्चुअली वास्तु कंप्लायंट है, एक होता है जो आप समझते हो वास्तु कंप्लायंट है। अब जैसे वास्तु कंप्लायंट लोगों को लगता है, इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में बेडरूम, और नॉर्थ वेस्ट पे बच्चों का रूम, डॉटर, है ना। तो वास्तु कंप्लायंट का टोटल डेफिनेशन ये है। और एंट्रेंस नॉर्थ या ईस्ट पे बना दो, बट ये एक्चुअली ट्रूथ नहीं है, क्योंकि रियल टाइम वास्तु कंप्लायंट हाउसेस कभी ऑफ नहीं होते हैं इन घरों में। मतलब आप ये समझ के चलो कि ये तो गूगल ही बता देता है। जी बिल्कुल। तो इवेंचुअली जो इतने बतेड़ा वास्तु कंसल्टेंट्स है, वो कर क्या रहे हैं? एवरी पर्सन इज अ वास्तु कंसल्टेंट। अगर इतना ही होता वास्तु कंप्लायंट हाउसेस का डेफिनेशन, बट ये है नहीं।
वास्तु कंप्लायंट हाउसेज में एलिमेंट्स को बहुत तरह से बैलेंस करना होता है, वाया कलर्स, वाया ऑब्जेक्ट्स। फिर जब हम उसके सेकंड लेयर पे जाते हैं तो वाया द एनर्जी फील्ड्स, द मैग्नेटिक एनर्जी फील्ड्स, तो बहुत लेवल्स पे उसको क्लियर करना पड़ता है, उसको कंप्लायंट बनाना होता है, तब वो घर एक्चुअली ऑफ नहीं होता है। It's about the energy, it's not just about the placements. So, जो पुरानी बातें थी कि ये 4-5 चीज़ें, किचन, बेडरूम, दरवाजे इधर उधर हो तो ठीक है, अब वो चीज़ें उससे बढ़ के लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि एनर्जी, पोजिशनिंग, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। I've had lot of customers come to our sites and अगर वो योगी है या मेडिटेशंस में है, अक्सर रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं। तो वो रुद्राक्ष अगर एक एनर्जी फ्लो पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एंड किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, उससे भी चीज़ों को असेस की जाती है। कुछ लोग सॉइल की टेस्टिंग करवाते हैं कि सॉइल में एक छोटा सा सैंपल लेके जाना चाहता हूँ, वो भी अपने पर्टिकुलर यूनिट का, कि मैं इसको लेट्स से इन माय मेडिटेशन प्रैक्टिसेस और through a monastery or whatever they belong to, they get it assessed कि energy level wise कैसा है, क्या ये मुझे पूर्ति देगी, प्रोडक्टिविटी देगी कि मेरे को सेटबैक देगी, and then the decisions are taken or not is taken care of. So it's interesting, the world is growing. Yeah. What should one know about the main entrance apart from just its direction? मेन एंट्रेंस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। इसमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि मेन एंट्रेंस स्लाइटली बिग होना चाहिए कंपेयर टू द अदर एंट्रेंसेस। उसमें जो आप डेकोर लगा रहे हो, इवन द बेसिक फुट मैट आई वुड से, वो भी उस जोन के एलिमेंट के हिसाब से होना चाहिए। मेन एंट्रेंस में जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स लगा देते हैं जैसे गणेश जी और वट, तो वो भी एक एलिमेंट, इफ़ योर मेन एंट्रेंस इज टूवर्ड्स साउथ, आप एक फ्लेम यूज़ कर सकते हो। सो कलर ऑफ द मेन एंट्रेंस, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके नॉर्थ का सही एंट्रेंस खुला हुआ है, जो होना चाहिए नॉर्थ के एंट्रेंस पे, बट द विनियर दैट दे हैव चोजन इज लिटिल रेड एंड मरूनिश इन कलर। सो इवेंचुअली उनको फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो मेन एंट्रेंस का डायरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट है, बट हाउ यू आर कंस्ट्रक्टिंग द मेन एंट्रेंस, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड इन द मेन एंट्रेंस, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। The next question is very interesting. Hear me out. So लोग बात करते हैं नेचुरल एलिमेंट्स की, कि पेड़, पानी, नेचुरल डेकोर आइटम्स, ये तो अच्छे हैं, नेचुरल है। करेक्ट। सो ये क्या वास्तु प्रमोट करते हैं, जैसे तैसे लगा लो, कितनी लगा लो, इस पे क्या कह रहा है? मतलब जैसे हम बात कर रहे थे ना नॉर्थ ईस्ट को ओपन होने का, तो अच्छी बात है, ओपन है, पर वहाँ पे भर भर के पेड़ पौधे लगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप नेचुरल है वो ठीक है, बट अगेन आई रिपीट कि हर एक ऑब्जेक्ट नेचुरल और आर्टिफिशियल लगाओ अंडरस्टैंडिंग द लॉज। नेचुरल है, अब प्लांट्स है, साउथ वेस्ट पे लगा दिया तो झगड़े होंगे, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, वहाँ पे एयर डाल दिया, डिस्टर्बिंग द अर्थ, हर समय आर्ग्यूमेंट्स। फिर बोलोगे हमने तो नेचुरल किया है। ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल का एक इम्पॉर्टेंस है, ट्रू, बट इट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएटली यूज। दूसरा, मान लो सपोज ईस्ट में हम प्लांट्स अलाउ करते हैं, अब प्लांट्स तो ईस्ट में डाल दिए, कलर सबको मार दिया वाइट या ब्लू, एक्सेसिव ब्लू और वाइट, अगेन एन इम्बैलेंस। प्लांट्स अलाउड है, नेचुरल चीज़ें अलाउड है, बट डिटेलिंग को समझो कि वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसको आ रहा है, तुमको क्यों नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड कि कहाँ गड़बड़ किया है। तो बहुत हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि वास्तु कंप्लाइंट है, हमने बहुत जगह प्लांट्स लगाए हैं, द नेचुरल एनर्जी फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो एक्सेट्रा, बट फिर हम साथ बैठे इसलिए ना क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स है। True. So everything is ultimately an element. Everything has come from the earth. Yes. And be it living or non-living, है तो मतलब nature की देन. So treat it in the appropriate zone with the appropriate color. Yes. Metal And with appropriate knowledge. and appropriate knowledge. गूगल के भरोसे पे मत चलो। Okay. Can the energy of an object, gifts or maybe second-hand items जो pass on हुई है impact the home? Yes, it does. And this is actually a very tricky question. I would generally not answer to this, but I will tell you it does.
in fact, I have been taught to actually never accept random gifts. Because सामने वाले का जो इंटेंट होता है ना, वो आपके घर पे उस गिफ्ट के माध्यम से आ रहा है. Whatever is the intent of that person. Of course, if it's your beloved ones, you should. That is a separate thing all about. But generally, बहुत सारे लोग अपने को कुछ न कुछ देते रहते हैं. So we avoid that. And ये करना चाहिए. हर किसी से हर चीज़ नहीं लेनी चाहिए. You must understand that हम एनर्जी की बात कर रहे हैं. समथिंग विच इज़ नॉट इन द मैनिफेस्टेड, मतलब फिजिकल फॉर्म पे नहीं है, तो जो गिफ्ट हम दे रहे हैं वो इंटेंशन भी तो मतलब इट्स नॉट इन द फिजिकल फॉर्म बट इट इज़ इन द एनर्जेटिक फॉर्म, और वो आ रहा है आपके घर पे. आप उसको कैसे, कब यूज़ कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे हो, वो इम्पैक्ट करता है आपको. Very true. Is it possible to energetically reset a home after, let's say, an illness or a stress? Yes, it is possible. Can you elaborate more on the process? करेक्ट. अगर आप रीसेट करना चाहते हो कोई भी चीज़ को, आपने डिसाइड किया, आपको समझ में आया कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्लियर हो गया कि ये है, तो 2-3 बहुत इजी टेक्निक्स है. फर्स्टली, सॉल्ट वाटर से अपने घर का पोछा लगा लो. सॉल्ट एंड वाटर, द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज सच दैट वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, पुल करता है एंड उसको क्लेंस करता है. या मैं ऐसे बोलूँ तो वो नेगेटिव आयंस को रिलीज करता है. Okay. So the more positive ions are there in your environment, the more deprived of energy you are. So या फिर एक बोल में, हर एक रूम पे, मे बी लिविंग एरिया और या मास्टर रूम, वट एवर, वहाँ पर एक ग्लास बोल में वाटर एंड थोड़ा सॉल्ट, 2 spoons ऑफ रॉक सॉल्ट into a bowl of water, वहाँ रख दो. इंस्टेंटली एंड इंस्टेंटली आपको फील होगा कि बहुत अच्छा फील हो रहा है. या फिर धूना, जो धूना होता है ना, जो ट्रेडिशनली लोग करते थे विद दैट काउ डंग केक एंड कपूर, 2 लौंग रख के, वो धूना करो अपने घर पे. बिकॉज फायर हैज़ दैट एबिलिटी टू बर्न थिंग्स. जो नेगेटिविटी है ना, जो स्मोक इनहेल कर रहे हो, जो धूना हो रहा है आपके घर पे, उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पुल होती है. या महीने में, 2 महीने में, जब भी आपको लगता है हवन कर लो. मेरे बहुत क्लाइंट्स खुद भी हवन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एक छोटे हवन कुंड पे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दे नीड दैट राइज इन द एनर्जी. दे नीड टू नाउ चेंज थिंग्स विच हैव बीन देयर सिंस एजेस. सो ये टेक्निक्स अगर आप फॉलो करते हो, एक्टिवेटिंग द फायर, एक्टिवेटिंग विद द सॉल्ट वाटर, आप देखोगे कि है ना, जो चीज़ें शायद चलती आ रही थी, जो आपको लग रहा था कि ये कभी ठीक नहीं होंगी, वो होने लगती है. I've experienced it myself. Yeah. Should Vastu be aligned to a person's personality or just his or her house? Okay. And to add to it, if, let's say, an individual owns multiple houses, how does the Vastu behave? Okay, I'll answer to the first one first. तो आपने मुझसे ये पूछा कि वास्तु क्या उसकी पर्सनालिटी के साथ अलाइन होनी चाहिए, नॉट जस्ट द हाउस. एग्जैक्टली, दिस इज़ व्हेन वी गो इनटू द नेक्स्ट लेयर ऑफ वास्तु. हमने अभी तक तत्वों पे बात करी, हमने 5 एलिमेंट्स, हमने एनर्जी फील्ड्स पे बात करी, बट हमने एस्ट्रो वास्तु पे बात नहीं किया. ये जो पर्सनालिटी है ना, अगर आप एक घर को देखोगे, फिर आप एक्सपीरियंस कर लो इसको, आप देखोगे कि एक सर्टेन घर एक डॉक्टर को बड़ा फ्लरिश करा देता है. यू नो, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल इन दैट हाउस, और फिर वो सोचता है कि अब ये घर मैं दे देता हूँ एंड लेट अ बिजनेसमैन कम इनटू दैट हाउस. और वो बिजनेसमैन उस घर में जाने के बाद उस पर कर्ज ही कर्ज हो जाते हैं. ही इज़ कम्प्लीटली इनटू डेप्थ. पर अगर वो सिर्फ 5 एलिमेंट्स का ही बैलेंस है, तो ऐसा क्यों? True. दूसरा, अगर वो इतने ईयर्स से, फॉर इंस्टेंस कोई भी एक बंदा बहुत सालों से घर पे रह रहा है और उसके हिसाब से उसने बड़ा ग्रो किया है, सारे बच्चों की शादी करा दी, सब कुछ करा दिया, और सडनली अब उसका वास्तु खराब होने लगे. यू नो, अब लोग उनको आके बोलते हैं कि जो तुम्हारा सफरिंग है तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा घर वास्तु अलाइन नहीं है. और उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सारी ज़िंदगी मैंने ग्रो किया है और अब वो मुझे आके बोल रहा है कि वास्तु अलाइन नहीं है. दिस इज़ बिकॉज कि आपकी पर्सनालिटी में आपको हर एक टाइम एक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसको टाइमलाइन पे महादशा अंतरदशा बोलते हैं. तो जब आप एक्चुअली वास्तु अपनी पर्सनालिटी के साथ अलाइन करते हो तो यू बिकम अनस्टॉपेबल. दीज आर, जो मैं बोल रही थी कि महावास्तु बहुत डिटेलिंग में जाता है.
वेरी मान के चलो कि ये बहुत स्लो प्रोसेस और बहुत कैलकुलेटिव प्रोसेस से लेकर जाता है, और एक रैंडम घर ए पर्सन को सूट होता है और बी को नहीं होता है. सो दिस इज़ बिकॉज कि उस पे 5 एलिमेंट्स के अलावा बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस हैं जो एनी टाइम इम्पैक्ट कर रहे हैं. And if a person owns multiple properties, how does Vastu behave? मान लो कि सपोज आई टेल यू, और आपका एक घर सिलीगुड़ी है, एक कैलकाटा है, एक दिल्ली है, ठीक है, बट आप रिलेट किस घर से करते हो? सिलीगुड़ी से. या प्राइमरी हाउस सिलीगुड़ी. नाउ यू आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली. अभी आप दिल्ली में हो और आपको पता चलता है कि सिलीगुड़ी घर पे चोरी हुई है, या देयर हैज़ बीन सम फायर मिसहैप और एनीथिंग. जस्ट एग्जांपल प्रतीक, तुरंत भाग के आओगे, इमीडिएट सारे रिलेटिव्स को कॉल कर दोगे, देखो फटाफट क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इन दैट एंग्जाइटी, इमीडिएट सोल्यूशन. अब वहीं आपका दिल्ली घर पे कुछ हुआ है, बट वहाँ पर इसके कंपैरेटिवली एंग्जाइटी कम होगी, क्योंकि हम प्राइमरीली कितनी भी प्रॉपर्टीज ओन करें, हम रिलेट एक से प्राइमरी करते हैं. सो डेफिनेटली वो सारी प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं एंड हम चेक करते हैं, हर एक प्रॉपर्टी पे एस्ट्रोलॉजी चेक करते हैं. बट जब आप बात करते हो कि अगर मेरे को ऑप्शन दी जाए कि इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है या इसको, तो न्यूक्लियर या यू नो व्हेन वी आर इन अ जॉइंट फैमिलीज, तो हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं जहाँ पर आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो. तो वहाँ पर इट्स ओके, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आर फाइन, वी बैलेंस दैट, एवरीथिंग इज गुड विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्राइमरीली वी लुक इनटू दैट प्राइमरी प्रॉपर्टी जिससे आप सबसे पहले कनेक्ट करते हो, सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो. Like you spoke about the doctor and businessman example, do professions matter when deciding who should live or work in which part of the house? या अगर अच्छा इसको ना चेक कर लो, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉपर डेटाबेस है इसका. मैंने एक्चुअली बहुत लोगों का देखा है, वो सक्सेसफुल है. मैंने उनके क्लिनिक्स को मेजर किया है खुद व्हेन आई वाज इनटू दिस प्रोफेशन, और मैंने देखा कि हमारे स्पेस का ना एक हीलिंग जोन होता है, नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ द हीलिंग जोन ऑफ दैट स्पेस. और अब अगर वो डॉक्टर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ बैठा है जी, है ना, ऑटोमेटिकली जितने पेशेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि ये ना उस डॉक्टर के पास जाके वो तो पानी भी दे देता है तो अमृत होता है, हम ठीक हो जाते हैं. क्योंकि वो जिस जगह पे बैठा है ना, वो अश्विनी नक्षत्र, वो हीलिंग के नक्षत्र है, वो जोन ही हीलिंग का है, ऑटो उसमें वो आ जाता है. मतलब कोई डॉक्टर होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, देव डन MBBS MD एवरीथिंग, और गलत जोन पे बैठे, ज्ञान बहुत है, डिलीवर नहीं कर पाते, या लोग उसको उस तरह से ले नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे. एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो वेस्ट की डायरेक्शन में बैठे, जी, दैट इज द जोन फॉर एस्ट्रोलॉजी, वो गणेशा का डायरेक्शन है, एंड गणेशा इज द लॉर्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी. ऑटोमेटिकली उसको सब कुछ ऐसा लगेगा सब समझ में आ रहा है, और कहीं है बहुत नॉलेजेबल है बट नहीं हो रहा है, नॉट सक्सेसफुल इन प्रोफेशन. सो व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग और प्लेसिंग और स्लीपिंग, कुछ भी जो भी आप एक्टिविटी एक लॉन्गर टाइम के लिए कर रहे हो, अगर उसको सही जोन पे करते हो, आप देखोगे कि प्रोफेशनली इंटरनली आप पीस पे हो, प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो, और है ना, ये आपको लगता है कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो. हम एज कंसल्टेंट्स ये देख लेते हैं कि बैठा सही जगह पे है, इसी वजह से वो एनर्जी ऑटो सपोर्ट कर रही है उसको. something called luck in common man's language. Yes. How should children's room or study zone be planned for focus and creativity? See, there are two ways to answering this. One is on the surface level, जहाँ पर हम मोटा मोटा बता देते हैं कि जो एजुकेशन और सेविंग्स का जोन है, विच इज़ बिटवीन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, सो उस एरिया पे बिठा दो, ऑटोमेटिकली आप बच्चे ज़्यादा स्टडी फोकस होने लगेंगे, बिकॉज वो जोन ग्रास्पिंग का जोन है. बट इन रियलिटी व्हेन आई प्लान फॉर द चिल्ड्रन ऑफ माई क्लाइंट्स, हम उनकी एस्ट्रो चार्ट पे देखते हैं, बच्चों की, हाँ हर किसी की, क्योंकि उनकी पढ़ाई पे बात हो रही है ना, तो उस बच्चे की पढ़ाई का एक जोन, एक कॉन्टेक्स्ट होता है. एस्ट्रोलॉजिकली उनके 12 हाउसेज में 1 हाउस रिप्रेजेंट्स स्टडीज़. वो स्टडीज से रिलेटेड जो डायरेक्शन है, उस राशि से रिलेटेड जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे हम उस बच्चे को बिठा देते हैं. वो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पर भी हो सकता है,
बट अगर उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा स्टडीज़ पे उतना एक्सेल नहीं करता है। वर्सेस अगर वो उस राइट डायरेक्शन में बैठ जाए प्रॉपर इवैल्यूएशंस के बाद, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। प्लस जो बेसिक डायरेक्शन है स्टडीज़ का, वेस्ट साउथ वेस्ट, उसको तो बैलेंस करना ही है। दैट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो स्पेस का एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है रिलेटेड टू स्टडीज़। एंड रियल टाइम पे उस बच्चे का हॉरोस्कोप उस जोन को डिटरमिन करता है। So it's not like just face north when you are trying to study and you'll be good. No. It's very customized, it's very individualistic, Yeah. can be varied, not सिर्फ ज़रूरी नहीं है, it can face multiple directions and will depend on who you are, what is your personality, what works for you. Exactly. काफ़ी लोग हैं जो सुबह उठ के नहीं कर सकते लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, Correct. Late nights. late nighters, the owls. So I think it's very very personality driven. एंड जो आपने फेसिंग की बात करी ना, ये भी हमारे पास बहुत कॉमनली आता है। कहीं पर भी बैठे हो, फेस तो नॉट कर रहे। जी, अब वहाँ वास्तव में हमने देखा है, ऑफ कोर्स फेसिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट सही जगह पे बैठना इज मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर प्लेसिंग एट द राइट, इफ़ यू आर सिटिंग एट द राइट लोकेशन एंड फॉर सम रीजन नॉट फेसिंग नॉर्थ, तो इट इज़ ओके। बट इफ़ यू आर सिटिंग इन अ रॉन्ग लोकेशन एंड इवन इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, nothing will happen. doesn't have. दूसरा, north facing is ideally not very correct. It is important, I will not say. But west, because west is the zone for direction for technical knowledge. तो जो बच्चे होते हैं ना, मतलब ये मिथ चलता आ रहा है एक्चुअली ईयर से कि नॉर्थ या ईस्ट बिठाओ, वो डूज एंड डोंट्स वाली बात है। डूज एंड डोंट्स वाली बात। तो ईस्ट क्या होता है, डैट इज़ अ जोन फॉर सोशल कनेक्शंस। वो हमेशा नेटवर्किंग में ही लगे रहेंगे बच्चे, और आते हैं ये हमारे पास कंप्लेंट्स। नॉर्थ में रहते हैं तो एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट, बिकॉज दैट इज़ अ जोन फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिसइंटरेस्टेड, जम्प्ड ऑन टू अनदर वन। बट व्हेन यू सिट इन वेस्ट, फेसिंग वेस्ट आई वुड से, नॉट सिटिंग इन वेस्ट, तो एक्चुअली आप उस नॉलेज की टेक्निकल पार्ट्स को ग्रास्प करने लगते हो। आई फील आज की डेट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क की। लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल, लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, पीपल वी हैव स्टडीड टुगेदर या वी आर वर्किंग टुगेदर, दे ऑफ्टन कंप्लेन कि यार मैं शैलो वर्क पे रह जाता हूँ, लेकिन एक है ना कि इंटेंट फोकस के साथ डीप डाइव करना वो कहीं ना कहीं पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि राइट नॉलेज अवेलेबल नहीं है। एंड लोगों को भी शॉर्टकट्स की आदत है, पेशेंस नहीं है। उनको लगता है कि कोई वास्तु कंसल्टेंट को बुलाओ, बिना नक्शा बनाए, बिना कोई एफर्ट दिए, वो बंदा कंपास लेकर आएगा और ऐसे ऐसे घूमेगा घर पे, और यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ ठीक है। इट इज़ नॉट वर्क लाइक दिस। वास्तु विच हैज़ बीन सिंस decades and decades and decades does not work with a compass in hand and a half-hour job. और इतना ही करना है तो आई वुड से कि हर कोई वास्तु एक्सपर्ट्स है, क्योंकि गूगल पे उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल, एंड विद AI coming up, but it is custom, it is in depth, इसलिए वो इतने सालों से चल रहा है। और इसीलिए the so-called वास्तु compliant houses are not really depends on successful. what level are you looking at it, and complete furnishing of the house is equally important rather than just the built of it. Yeah. Can specific directions or elements, let's say, support emotional stability and mental clarity? Yes. Specific, can you just repeat this question once? Can specific element or specific direction zone affect emotional stability and mental clarity? Yeah. जैसे आपका स्पेसिफिक एलिमेंट पे बात करूँ तो ये दोनों ही ड्रिवन है नॉर्थ से, वाटर से। और पहले के ज़माने में ना राजा लोग जो होते थे वो अपने घर पे ना एक मतलब अपने महल में एक है ना कोक भवन बनाते थे, जहाँ पे वो पर्टिकुलरली रानियाँ और द प्रिंसेस, द फीमेल्स वुड गो देयर एंड क्राई देयर हार्ट्स आउट। अच्छा, हाँ, ये होता था। जो आज के टाइम पे हमने उसको बना दिया है। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक जोन है, WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो कि डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। तो वहाँ पर हम रेकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को कि दिन में 1 घंटे तो जाके बैठ ही जाओ। जो लेट गो, जो इतना भर के रखा है ना, उसको निकाल दोगे, that will move out. is interesting. Yeah. And south-southwest, there is another direction, which is a direction for disposal,
एंड लेट गो, आई वुड से। Okay. तो रिकमेंडेड है वहाँ पे टॉयलेट, बट कितनी बार टॉयलेट नहीं बन के, दैट इज सम पार्ट ऑफ द हाउस वेर इन यू कैन सिट। तो कभी कोई झूला लगा लेता है, वट एवर, मतलब सम काइंड वेरी, तो वी टेल देम कि बैठो। जो इतना ना इसने मेरे साथ ये किया वो किया, जो मेंटल क्लॉगीनेस लगता है, समझ ही नहीं आता है कि लाइफ में क्या करे कैसे करे, आइदर ऑफ द टू जोन्स पे जाके बैठ जाओ विच एवर पॉसिबल। जो मेंटल क्लॉग्ड है ना, खुलने लगता है, क्योंकि वो जोन है ही लेट गो का, डिटॉक्सिफिकेशन का। ऑटोमेटिकली लगता है 1 घंटे वहाँ बैठने के बाद कि हाँ अब हम ये कर लेते हैं लाइफ में। और हम एक्चुअली सजेस्ट करते हैं, और हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। जो लोग हमको बोलते हैं ना हमको समझ नहीं आ रहा है, हम बोलते हैं कि जो हमको देखना है वो तो हम देख रहे हैं, बट आप दिन में 1 घंटा वहाँ बैठ जाओ, क्योंकि आपको समझ आने लगेगा। जो फॉग है ना, मेंटल फॉग, वो क्लियर होने लगेगा। जो इमोशनली इतना बांध के रखे हो खुद को, होल्डिंग ऑन टू सो मेनी थिंग, जो छूट नहीं रहा है वो छूटने लगेगा। वो अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी कि भाई ये फालतू का पकड़ के रखा है, मैंने छोड़ दो। Interesting. Very interesting. Any Vastu tip for women working from home or managing family stress zones? यस, इसमें ना मैं एक टिप ये दूंगी कि जनरली जो फीमेल्स घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 चीज़। एक तो फैमिली सपोर्ट रहे, प्लस उनके स्किल्स को रिकग्निशन मिले। तो वेरी सिंपल टिप है कि आप अपने फैमिली, अपने हस्बैंड का विद द फैमिली एक है ना गोल्डन फ्रेम में एक फ़ोटो प्रिंट करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो। Okay. 2 फ़ायदे होंगे। साउथ वेस्ट इज़ द जोन फॉर स्टेबिलिटी। फैमिली में जो स्टेबिलिटी काम कर रही है, ये मैनेज नहीं हो रहा है, वो मैनेज, दैट थिंग्स विल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। प्लस आप खुद हो उस फोटो पे, और वो डायरेक्शन ही स्किल्स का है, आपके स्किल्स इन्हांस होने लगते हैं। सेकेंडली, जो एक फीमेल्स का मैंने देखा है कि बहुत ओवर चर्निंग चलती है दिमाग में, उसके लिए हम बोलते हैं कि एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, विच इज़ बिटवीन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। वहाँ पे ना कुछ मत करो, एक कामधेनु गाय रख दो। कामधेनु आपको बहुत इजीली मिल जाता है, महावास्तु के वेबसाइट पे इट्स इजीली अवेलेबल। एंड वो गाय और बछड़ा वाला कामधेनु गाय नहीं होता है। कामधेनु गाय इज़ द काउ जिसका फेस ह्यूमन होता है एंड द बॉडी इज़ लाइक अ काउ, जो कि समुद्र मंथन के टाइम पे निकली थी। तो क्या होता है ना, वो जो एक्सेस मंथन चलता है, दैट बीइंग अ मॉम्स गिल्ट, अ वाइफ्स गिल्ट, जो ऑटो होता है फीमेल्स में कि कोई ना कोई कमेंट कर देता है, तो वो जो इन्हांस नहीं कर पाते अपनी एबिलिटीज़ को, अगर वो ये लगाएंगे ना, जो उनकी चर्निंग चल रही है ना, वो प्रोडक्टिव होने लगेगी, वो एनालिसिस में कन्वर्ट होगा इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एक तो घर पे, Okay. और दूसरा उनके अंदर की भी जो अननेसेसरी की एंग्जाइटी होती है वो सेटल होने लगेगा, एज इफ वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगी उस चीज़ को, एंड दे कैन ईजिली फोकस, वो बेटर फंक्शन होता है। एंड आई हैव डन दिस विथ मैनी केसेस, क्योंकि अब है ना क्लाउड किचन्स बहुत, आफ्टर कोविड क्लाउड किचन, स्मॉल बिजनेस बहुत ट्रेंड में आ गए हैं, और उनको लगता है वो कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी, कैसे होगा। सो आई जस्ट टेल देम ये 2 रेमेडी कर दो, फैमिली का सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। और एक फ़ोटो लगाने में तो वो रूम अच्छा ही दिख रहा है ना, रूम है, लिविंग है, कुछ भी है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, एक फ़ोटो ही लगा रहे हो गोल्डन फ्रेम में, बड़ी सुंदर सी फैमिली फ़ोटो, सारे फैमिली वाले बड़े खुश होते हैं। बट वास्तु वाइज हमने एक्चुअली वो एनर्जीज़ को सेट कर दिए। और कामधेनु गाय छोटी सी गाय होती है, लगा लो फ्लोर पे। वेरी सिंपल टेक्निक्स बट वेरी इफेक्टिव। Let's talk about some experiences of yours. What is that one Vastu remedy that you have seen transform a space in big fashion? ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान को खाली रखो। रिसेंटली, वेरी रिसेंटली ऑल्सो, मैंने पास्ता फैक्ट्री को भी किया था, चाय फैक्ट्री को भी किया था, और सेंटर एरिया में ना उनको लगता है ये एरिया तो वेस्ट जा रहा है, तो वहाँ पर है ना पूरा भर के माल भर दो। Usually हो ही जाता है. They do this without really having Naturally, it's natural disposal. या तो मैंने उनको बोला ये हटा दो। अच्छा, पहले तो वो ऐसा लगता है स्पेस से कैसे हटेगा, कैसे, आई सेड जस्ट डू इट फॉर सम डेज, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि ये रिजल्ट 15-20 दिन में उनको फील हो जाएगा, है ना, बट उनको ऐसा लगता है कि कैसे। सो वी मेड देम डू इट, एंड एक्चुअली वो खुद आके मुझे बोलते हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है, जो मतलब जो जितने वेरिड प्रॉब्लम्स थे ना कहीं एक सोल्यूशन की तरफ होने लगे। ऑफ कोर्स वी डिड अदर थिंग्स, बट अगर वन वास्तु रेमेडी आई वुड से कि ट्रांसफॉर्म्स अ स्पेस इज द क्लियरेंस ऑफ ब्रह्मस्थान, मोस्ट वाइटल थिंग।
अब ऐसे ही समझ लो ना, बॉडी में नेवल है जैसे हम बात कर रहे थे, अब किसी कारण से नेवल डिस्टर्ब्ड है तो आपका हेडेक हो जाएगा, पुल डाउन हो जाएगी एनर्जीज, काम करने का मन नहीं लगेगा। वहीं स्टमक ठीक है, नेवल ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, वेरी एंथुजियास्टिक, भले कंधे में दर्द है, मतलब कहीं और हो सकता है कि वास्तु इम्बैलेंस है, कंधे में दर्द है या फीट में दर्द है या काफ मसल्स में पेन है, बट काम चलेगा। नेवल डिस्टर्ब्ड, एवरीथिंग गोes for a toss. So it is True. So what are some popular Vastu fixes that people actually should avoid? साउथ ईस्ट में रेड बल्ब 24/7 जलाना बंद कर दो। माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूवर्स। ये ना आई डोंट नो मतलब कहाँ से देखते हैं, अगेन एज आई से कि वो रियलाइज ही नहीं करते, वो एक्सपीरियंस भी नहीं करते उसको। साउथ ईस्ट में रेड बल्ब रिकमेंडेड है, बट साउथ ईस्ट खुद में इतना बड़ा है। विच पोर्शन ऑफ साउथ ईस्ट, विच एनर्जी फील्ड ऑफ साउथ ईस्ट, कहीं तो भी नहीं लगा सकते। And if at all it is required for you. ऑफ कोर्स, बट चलो रिक्वायर्ड और नॉन रिक्वायर्ड, मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप सही एनर्जी फील्ड पे लगा रहे हो तब तो इफेक्टिव है। साउथ ईस्ट में खुद ही 3 एनर्जी फील्ड्स है, कहीं तो भी लगा देते हो। दैट लीड्स टू ओवर एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी केओस इन द हाउस, और उनको लगता है उससे पैसे आ रहे हैं। ये जो मिथ फॉलो करते हैं ना, दिस इज आई वुड से कि प्लीज समझो, घर पे कुछ भी कर रहे हो जस्ट डोंट रैंडमली फॉलो। और अगर कर भी लिया, ओके आई से कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ से भी आपने देखा और कर लिया, उस फलाने को रिजल्ट आया, यू आर इन दैट डायर नीड कि आपको भी ये प्रॉब्लम है और सोल्यूशन चाहिए, कर लो, फिर ऑब्जर्व तो करो, कुछ तो Take a review and take a corrective action if needed. गो अहेड विद इट। दूसरा, गणपति जी की फोटो हर घर पे, मैं थक जाती हूँ समझाते समझाते कि गणपति जी द्वारपाल नहीं है। ही इज नॉट अ चौकीदार, ही इज अ गॉड टू बी वर्शिप्ड इन द टेम्पल। इनफैक्ट है ना, ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी बहुत मतलब सबने समझाया हुआ है हमको, बट हम रिलेट नहीं किए कभी। जब पार्वती जी ने गणेश जी को द्वारपाल बना के खड़ा किया था उनके द्वार पे, शिव जी आए थे, अ मैसिव फाइट बिटवीन द टू, है ना। तो जिन भी घरों में, अच्छा दिस हैज़ बीन प्रूवन विद वेरिड केस स्टडीज़, जिन भी घरों में हमने गणेश जी देखे हैं डोर्स पे, हम सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, मेल्स ऑफ द फैमिली आर डिस्टर्ब्ड डायरेक्टली, एंड इट्स अ फीमेल डोमिनेटेड हाउस प्राइमरीली। आई मीन ऐसा नहीं बोलूँगी कि कम्प्लीटली, बट प्राइमरीली, क्योंकि मेल्स शिव जी डिस्टर्ब्ड, गणेश आर डिस्टर्ब्ड। लाइक सोचो ना कि वो जो स्टोरीज थे वो कैसे आए और क्या था उनका मतलब आज की लाइफ में। दे ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, बट उसने लगाया तो हम लगा लेते हैं, क्या हुआ क्या नहीं भूल जाओ। It is not recommended. These are the things that please understand before placing them. So the next question is very interesting. Is it okay to follow a half-baked Vastu or better off कि करो ही मत? मत ही करो, एटलीस्ट जहाँ हो वहाँ ठीक हो, है ना। आधा अधूरा करोगे जहाँ हो और मेस में चले जाओगे और पता भी नहीं चलेगा, विद द होप कि कुछ ठीक हो। और I would suggest either take expert help or analyze it, study it yourself. But अगर आधा अधूरा सा knowledge है, don't do it. Can someone evaluate a space's energy even without expert tools or charts? Yes. Can you give some I do. examples? हमारा ना महावास्तु में कोर्स होता है, it is the intuitive course which we call the advanced महावास्तु course. उसमें ना हमको सिखाया जाता है, लाइक आई स्कैन दी एनर्जीज ऑन माई पाम, आई रियली डोंट हैव टू टेक दोज टूल्स एवरी टाइम। और कहीं पे भी इम्बैलेंसेस होते हैं तो वी सेंस इट विद द स्मेल, वहाँ की सॉइल उठा के वो स्मेल हमको पता चल जाता है कि कहाँ डिस्टर्ब्ड है, हम हैंड से स्कैन कर लेते हैं। तो टूल्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई मीन क्या होता है कि आपको इंट्यूटिवली पता है, बट सामने वाला को प्रूफ चाहिए। अगर मैं आपके सामने एक पेंडुलम से पूछूं, है ना, एंड वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पे बता रहे, देन यू आर वेरी सेटिस्फाइड। दिखता है ना वो सामने। या हमारे पास ट्यूनर होता है, तो प्रैक्टिकली मैं ट्यूनर यूज़ करूँ तो आपको दिखता है कि भाई उसका जो मूवमेंट है, या यू नो दोज टूल्स यू गो अहेड। बट इन रियलिटी, like for myself, I use it, and we have been taught this by my mentor, Dr. Khushdeep Bansal, that
ये सारी चीज़ों की जगह you yourself are an electromagnetic field. Please understand कि तुम खुद एक एनर्जी हो, और एनर्जी स्कैन करना मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को पुल करता है. You can pull, you can understand, you can feel those energies, sense those energies. Of course, एक process के वाया हुआ है. We had to develop our intuitive skills and everything. But I don't use much of tools unless the client को लगता है कि आप Insist. यूज़ करके दिखा दो, मतलब यही है तो yeah. And is there anything a common man, someone who's not trained professionally as you are, can do without having these professional tools? ऐसा कुछ technique है? नहीं. Like, you need to be trained for this. Yes, we are trained and it's a regular practice of certain meditations, certain process. और I would also tell you कि ये जो tools एक common man उठाते हैं ना, वो solution भी सही देता है कि नहीं, उसकी assurance नहीं होती. You need to open those layers in yourself. नहीं तो वो tool वही बताएगा जो आप सुनना चाहते हो. So, it does not work like this. Next question is in conjunction. Can Vastu be practiced without symbols and rituals and just through intuitive design? क्या, as we just discussed, कि intuitive design से हो सकता है, absolutely होता है, और हम देखते हैं वैसे. बट सिम्बल्स और रिचुअल्स बनाए गए हैं सो डैट लोगों को समझ आए, उनको पता चले कि वो रखने से उनको पॉजिटिविटी आ रही है. बट अदरवाइज इंट्यूटिव नॉलेज से, इंट्यूटिव वेज ऑफ वर्किंग से एब्सोल्युटली वी कैन गिव. It's about the belief system and probably making it more बिलीफ सिस्टम, और जब तक आप दिखाओगे नहीं ना, नहीं समझ आता है. satisfaction. नहीं आता है. All right. So for someone who's overwhelmed with all the Vastu advice, where's a good place to start? I would say that there are two ways to answer this question. If someone is overwhelmed, over information है वास्तु का, तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट को क्लियर करो अपने घर का, क्योंकि वो जोन जो है मेंटल क्लैरिटी का जोन है. तो वो ऑटोमेटिकली वो मेंटल फॉग क्लियर होने लगता है एंड यू गेट टू नो कि अब क्या करना चाहिए लाइफ में. खुद के अंदर से वो सॉल्यूशंस आने लगता है. और या फिर हमसे कनेक्ट कर लो. We give free advice every Thursday. Okay. Yeah, so you can, we give that. That is my commitment to my guru, my mentor. So every Thursday, of course, there's a process. You need to book an appointment. You need to let us know that you need an appointment for that. और आप हमसे connect कर लो and we will guide you where you are going wrong or what can be done. And again, on very easy remedies. So, start करने का willingness होना चाहिए. फिर तो रास्ता मिल ही जाता है. True. So what's that one Vastu truth you wish every Indian homeowner understood, but unfortunately do not? The law of 5 elements. हर किसी को पता है कि 5 तत्वों से घर बनता है. 5 तत्वों को बैलेंस करना चाहिए. बट वो बैलेंस में जो एफर्ट लगता है ना, वो जो एक सही नॉलेज का अप्रोच होता है, वो नहीं करना चाहते. उनको ऐसा लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली गुड है, उनको ऐसा लगता है कि सब वास्तु ठीक है ज़िंदगी में. बट वास्तु इज़ नॉट अबाउट योर फाइनेंशियल ग्रोथ ओनली. इट इज़ अबाउट अलाइनिंग योर एनर्जी इन ऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ, बी इट हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स. तो पता सबको है कि हम जब 5 तत्वों की बात करते हैं, सबको सारा इन्फॉर्मेशन है. इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन है. बट वो जो एक स्टेप लेना होता है जी, उसको अलाइन करने के लिए, वो सही स्टेप नहीं लेते हैं. Amazing. So Suchi, thank you for grounding us in real logic while elevating our understanding of how spaces speak. You have truly shown us what Vastu is not something to be feared, but something about flow, about function, and about the feeling of it. To our listeners, if you felt even a moment of clarity today, imagine what your space could be feeling like when aligned with purpose. We hope this episode has helped you look beyond superstition and move toward an energy smart living. This is Rise signing off. Pratik Garg. Until next time. Thank you.